person. Uh, that's why those files which are sent by to be then third person, it will be automatically stored in. It will be comes to your inbox options. Now here I just created to be then file. Created one is to be then that those file which are created by to the user logged in. जो user logged in है, उससे जो files create किए हैं, that will be in our folders. That is created. Now I just open this file. I think this is the file last time worked on this one. रेफर किया था डेट एंड टाइम्स के with respect और attachments and files कीजिएगा. We'll see to the another file. This is my file. Last time I've created this file. Now, yesterday I will just discuss about to be then. These are to be then make quick revamp play arounds पर. This is to your file. आपने एक file create किया. How to read? This is to then electronic. Nature of this file is to the electronic. Computer number is 59, and this is its file number, and this is its subject. That is the turning on EFS demo. As you know, usually there are two part on our file. If we just consider the file, one portion is two portion. One is called to be then our CP, that is the correspondence sections and portions, and another one is called our noting portions. So yesterday I will show you how you can attach to how you can put up a file against a receipt. Suppose some receipt, some dark will be to the come to your sections, and you have to put up in a file. So then you are going from create new one and put up. तो आप receipts को last time I will show you कि किस तरह इसको put up करते हैं. Now after that I will show you कि how you just write down onto this file note portions. ये देखिएगा night file note portion लिया था, and I have to just send to be my reporting officer. Then reporting officer again sent back to me, just giving to them some comments, right? तो this is the to and fro. ये चलता ही रहेगा. आप फाइल अपने एंड पे सेंड करेंगे, and the reporting officer again send back to your file with some comments. So these are the process on to within file noting. Beside of this one, I will also be told you here, as you just sent, there is no need to write down your name, and this timestamp is automatically take as you send the file from your end to be the next level, right? And the very important one is that one कि next level पर next level मतलब your reporting officers can't be able to change your comments. एक बार comments आपने लिख दिया फाइल पर, तो आपके पास unless and until जब तक फाइल आपके पास है, you can make editing कर सकते हैं. But once you have sent it, आपने अपने लेवल से सेंड कर दिया, तो यू माइट नॉट एबल बी टू दैट मेक द चेंजेस नहीं कर सकते. और बिसाइड ऑफ दिस वन, नेक्स्ट लेवल ऑफिसर्स भी आपके फाइल नोटिंग पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता. he can only writes to be then its own comment. वो सिर्फ अपने कमेंट्स को ही राइट कर सकते हैं, राइट? वो किसी भी इस पर नेक्स्ट लेवल पर ना ही वो किसी भी तरह की पीयूसी जो रिसिप्ट आपने अटैच किया है, जिसको पीयूसी बनाया है, वो भी वो हटा नहीं सकते ना. हाँ, बिसाइड ऑफ दिस वन, वो आप न्यू रिसिप्ट रेफरेंस के लिए क्रेडिट कर सकते हैं, एड न्यू रिसिप्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दिस रिसिप्ट, या इन सपोर्ट ऑफ देयर हिज और हर कमेंट वो ही और शी कैन एडिट द रिसिप्ट कर सकते हैं. या अटैचमेंट आप इन रेफरेंस टू बी देन consent receipt या matters के consent, he or she can also be attached, make attachment. Now here I will also be told you कि whenever you just go for attachment is basically for to be your referencing. It will be support, it will be the support your comments जो supports कर सकते हैं, उसके supporting material आप कर सकते हैं. And it is not be necessary
द फाइल जो कंटेंट फाइल होगा या फाइल कंटेंट जो फाइल होगा दैट इट विल बी इन पीडीएफ फॉर्म। इट मे बी आपका एक्सेल डाटाशीट एक्सेल फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में, एनी फॉर्म आपका हो सकता है, जरूरी नहीं है। बट वेयर वेन एवर यू अपलोड एनीथिंग, जब आप इसमें अटैचमेंट नहीं करते, आप अपलोड करते हैं, तो उस इन दिस केस आपको जो डॉक्यूमेंटेशंस होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी इनटू द पीडीएफ फॉर्म एंड इट इज नॉट साइज, इट्स साइज इज नॉट बी मोर देन अप टू देन 20 MB. Now here after that one again I just show you, and beside of this one I will also be discussed to with the DSC. That is the very important. DSC means how because sometime आपने पहले देखा होगा कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड रिसिप्ट, इट नीड्स नो सिग्नेचर। ऐसा एक रिसिप्ट इन अर्ली फेसेस में इलेक्ट्रॉनिक जब हमने स्टार्ट किया तो आता था कि इट इज ए कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट, देयर इज ए नो नीड ऑफ सिग्नेचर। आज भी कई जगह इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। But today the scenario has been changed because to be the most of the work will be carried out onto the digital platform. So just keeping to be then just authorize your communications to your document digitally. So there is a new concept of DSC, that is a digital sign certificates का एक concept है। By using of this one आप क्या कर सकते हैं, there is a no need आपने, if first of all you have to purchase DSC from to the third party। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स है आपको थर्ड पार्टी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाइड पार्टीज हैं, कंपनीज हैं, वो वेरीफाइड करती हैं, वेरिफिकेशंस करती हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, दे आर द 3 टाइप क्लासेस ऑफ द DSC आर टू देयर। आपको DSC को सिलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंगली। दिस इज इट इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। आप जैसे जैसे क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लासेस पढ़ने का मतलब 1 2 3 का मतलब ये है कि नाउ योर सिक्योरिटी लेवल, जो आपका वेरिफिकेशन लेवल है, वो इनहेंस होता है एंड अकॉर्डिंगली देयर फीस विल बी इंक्रीज, उसकी फीस इंक्रीज होती है। और साथ में द वैलिडिटी जो होता है DSC का, दैट विल द वेरी फ्रॉम टू द 1 to 3 years का वैलिडिटी पीरियड होता है, जो कि वेरी करता है कि आप कौन सा वर्जन ले रहे हैं और कौन सी क्लास का ले रहे हैं। और अकॉर्डिंगली यू हैव टू द पे। और पेइंग का यदि इसकी पेमेंट की बात करें तो इट विल बी द स्टार्ट फ्रॉम 1000 टू आपका 5000 या 6000 के अप्रॉक्सी ये इसका रेंज होता है। आपके क्लास के अकॉर्डिंगली ही इसको किया जाता है। Once you got to within DSC from to the third party, and then first of all you have to register it. DSC जब आपको दिए थे हैं तो इसके लिए ई टोकन, सिग्नेचर टोकन, ई टोकन डिवाइस, USB डिवाइस में वो देते हैं। बाय यूजिंग दिस DSP डिवाइस पर आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो वंस जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका वो पासवर्ड मांगता है और फिर आपका DSC साइन एक्टिवेट हो जाता है। बट इफ यू वांट टू यूज दिस ई ऑफिस डिजिटल साइंस को आप यूज करना चाहते हैं ई ऑफिस पर, तो यू हैव टू फर्स्ट मेक द रजिस्ट्रेशन। आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा ई ऑफिस में एंड देन देयर आफ्टर यू कैन इजिली यूज दिस DSC। टिल डेट अभी इस पर डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि DSC को प्रोवाइड करना है तो किस लेवल पे करना है, कहाँ करना है। तो दीज आर ऑल टुगेदर पॉलिसी मैटर्स एंड दैट विल बी timely. I think it will be decided by together our senior officers. Now if your DSC is activated, now I'm just talking about together if it is activated, so DSC signs will be displayed here, so it become authentic। otherwise it is also be authentic, ये भी एक authentic है क्योंकि यदि हम this will depends on the nature of communication। यदि आप इंटर डिपार्टमेंट कर रहे हैं या इंट्रा डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो इंट्रा डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं तो शायद वो लोग कह भी सकते हैं। बट इंटर डिपार्टमेंट ओके, मैं एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहा हूँ या अपने एक सेक्शन से दूसरे सेक्शंस में भेज रहे हैं या डिवीजन से डिवीजन्स भेज रहे हैं, तो आई थिंक दिस विल बी द सफिशिएंट। क्योंकि दिस इज आल्सो भी व्हेनेवर यू जस्ट, आप कब राइट करेंगे या राइट तभी कर पाएंगे जब आप अपने लॉगिन पासवर्ड से एंटर्ड करेंगे। इट मींस दैट और लॉगिन पासवर्ड में भी 2 टायर सिक्योरिटी इज देयर।
तो डेफिनेटली जो कंसर्न पर्सन एंटर यहाँ किए हैं, तो डेफिनेटली ही इज द ओरिजिनल वन है, तो ये चल सकता है डे टू डे रेगुलर नोटिंग्स पर। बट दिस इज आल्सो भी मैटर which have to be then decided by to be then our managements. Now after that I just go through to the referencing, जो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि रेफरेंसिंग इज जस्ट लाइक ऑफ टू द फ्लैग। हम अपने फाइल पर क्या करते हैं, जनरली फाइल में हम देखते हैं कि रेफरेंसिंग करते हैं। तो फ्लैगिंग विल बी देन टू टाइप्स, दो तरह से फ्लैगिंग की जा सकती है। या तो आप रेफरेंसिंग कर रहे हैं या फ्लैगिंग कर रहे हैं आप कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट पर, या आप रेफरेंसिंग या फ्लैग कर रहे हैं अपनी नोटिंग पार्ट पर। ऐसा होता है जनरली, बिकॉज जब हम कोई नोट्स लिखते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम कहते हैं रेफर टू बी द कमेंट्स मेड अंडर द सीरियल नंबर सो एंड सो and so and so. So that is to noting. I just making the reference with respect to noting on page number 15. Suppose on page number 15. तो ये जो मैं रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, फ्लैगिंग कर रहा हूँ, मैं किसके विद रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक नोट लिखा, इस नोट में मैं जो लिख रहा हूँ वो इन रेफरेंस है पेज नंबर 15 पर सीरियल नंबर 68, सपोज फॉर डेमो 68 पर है। तो दैट इज द note to referencing, note to note referencing. Another is note to correspondence referencing by PUC number so and so. So here I just show you how to make it, because referencing is very important. Or the beauty of the system is this one, कि as the your reporting officer as make it become a hyperlink. Both of them become a hyperlink. As I am just click over there, this is referred है correspondence part tha, it is referred to PUC. It is one, suppose it is a one of one, it means that it is a single page PUC. If you have to then 100 page PUC, 200 page PUC, so by use you can also make the referencing by page number मान लीजिए 100 पेज का है and you are interested to make the references up to the page number 28, तो 28 will be the open। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, as you just click on this hyperlink, the 28th page will be to the simultaneous open। Now the same thing is there, note 2 is there। I just quick I because in this file I just make only the two notes, so I just making to be the notes to one para, it will ask to be then okay which you want to, which portion you want to make to be then hyperlink, so I just here making note 2, so this is called to be the flagging, generally it will be the flagging. Now there is a third option, the third option is to be then okay, how we make a draft. So today I will just told you about the ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, बिकॉज ड्राफ्ट इज आल्सो भी इम्पोर्टेंट, हमारे पास यही होता है। और ड्राफ्ट नोटिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्ट नोटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप नोट पोर्शन पे ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। दैट इज कॉल्ड द येलो पेजेस, जिसे हम येलो पेज कह रहे थे कि एडिटिंग बाय यूजिंग द येलो पेज, तो वो भी हम आपको अभी बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि एक यदि ये फाइल है मेरे पास एंड on this file, suppose I just want to लीजिएगा, एक ड्राफ्ट बनाते हैं ऑन दिस, एक फाइल में हम एक ड्राफ्ट अटैच करते हैं। जनरली ड्राफ्ट आप लोगों को पता है कि एक ड्राफ्ट डीएफए जो बनाते हैं, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, एक डीएफए हम इसमें बनाते हैं और इस अटैचमेंट को आई विल सेंड टू द माय सीनियर या रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग ऑफिसर्स उसमें क्या करेंगे, आई विल शो यू। नाउ जस्ट टेकिंग ए ड्राफ्ट, नाउ हियर वन ड्राफ्ट इज देयर। देखिएगा, one thing I always remember, if I'm open this file, it means that these all options are valid for this file. This is the very important one. ये सारे ऑप्शन इस फाइल्स के लिए वैलिड होंगे जो कि ओपन फाइल है। इसका सपोज आई वाज वांट टू शो मूवमेंट्स कहाँ से कब हुआ, डिटेल इस फाइल कब क्रिएट की, किस वक्त ये कहाँ पर, आई विल शो यू लेटर। Now I'm just going for draft. I just going draft, create new draft. नीचेगा फाइल नंबर सेम है, देखिएगा it will be remains the same. This file everything is this one। यहाँ पर मैं भी आपको बताता हूँ
ड्राफ्ट की डिटेल्स आपके पास इज देयर। जैसे ही आप यू हैव टू सेव इट, तो इट बिकम ए डीएफ, आपका डीएफ बनेगा। कैसे बनेगा, दिस विल बी अगेन, दिस इज माय सब्जेक्ट बिकॉज ऑलरेडी इट विल मेटाफील्ड जो इसने कॉपीज किया है, दैट इज टू टू माय फाइल मेटा, जो आपका मेटा डाटा मेरा जो फाइल्स का था उसने ऑटोमेटिकली इस ड्राफ्ट पोर्शन पे ले लिया है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, आप इस पे चेंजेस कर सकते हैं। आप फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस में सो मैनी इंडोर्स कर सकते हैं, नोट, सो मैनी थिंग्स आर डूइंग देयर, क्योंकि एक सेंट्रल सेक्रेटरीट के अकॉर्डिंगली जो उनका मैनुअल है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइस्ड है। तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसे ऑप्शंस होंगे दैट वी आर नॉट यूजिंग इन आवर ऑफिस, ठीक है। सो दे डोंट, उन्होंने देयरफॉर दे only some of them are to the only mandatory, and you have to take care of this one. The subjects is mandatory, language is mandatory, and your draft nature is mandatory। आपके पास न्यू है या ड्राफ्ट रिप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। Now here I'm just comes to this window. This is a simple word text है आपके पास, फाइल्स का होता है जैसे वर्ड टेक्स्ट होना है। दिस वन मोस्टली जब whenever you send to want to send a draft, जब आप कोई ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं किसी लेटर को, आपने ड्राफ्ट किया, आप देखना चाहते हैं कि इफ रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को सर प्लीज मेक द सम चेंजेस, और अकॉर्डिंगली या कोई मैटर चेंज करना है तो यू जस्ट मेक ए चेंजेस या गाइड अस रिगार्डिंग पर्टिकुलर मैटर्स, और आप चेंजेस करते हैं। वंस इट विल बी द ओके, आप फाइल पर उसको लेते हैं एंड देन आप उनको अप्रूव कराते हैं ड्राफ्ट को, एंड देन फिर उसको डिस्पैच पे ले जाते हैं। दिस इज डे टू डे जो वर्क हम फिजिकल जो फाइल्स मूवमेंट्स हम जो करते हैं उसमें हम ऐसा ही कुछ काम करते हैं। द सेम थिंग इज ऑल्सो हियर। यहाँ पर आइदर यू कैन राइट डाउन द ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट ऑप्शन इज आल्सो भी ओपन हियर। आप इजी वे में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई विल कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे हम डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं उस तरह से इस डॉक्यूमेंट में आप कॉपी पेस्ट, कहीं आपने वर्ड एमएस वर्ड में बना रखा है, यू जस्ट कॉपी फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट एंड जस्ट सेव। आई विल शो यू। Suppose at a time this is not possible. So many window will be open. I'm just taking my what's e-office demo. I just taking a word file and I'm just taking this one. Suppose it will be the draft form. मैं आपको बता रहा हूँ कि you just simply make to then copy paste. मैं कुछ भी एक मैटर्स को लेकर I try to then copy it and open it. Suppose it will be, I just make copy. Suppose I will just, it is some nomination form. I just copy this one. It will be more than sufficient copy. Just close it. And share my screen. सो सिंपली यू जस्ट मेक टू देन कॉपी पेस्ट। आप डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो इजी होता है हम लोगों को। सम टाइम वी आर हम लोग इस पर कुछ राइट भी करना चाहते हैं, तो आई जस्ट टेकिंग, मैंने से डिलीट कर दिया एंड आई जस्ट सिंपली मेक ए कमेंट, कोई भी एक कमेंट विच इज राइट। दिस इज अ डेमो ड्राफ्ट लेटर। आई जस्ट टाइप आई हैव जस्ट मेक this is a draft letter. If I just want to make to the some attachment, that's why saying आप Excel fill तो या किसी में भी लग सकते हैं। As I make it save, या फिर second way is that one कि you can upload it। आप अपलोड भी कर सकते हैं, बट अपलोड में आप ध्यान रखिएगा, अपलोड के लिए डॉक्यूमेंट शुड बी फ्री और शुड बी इन पीडीएफ। पीडीएफ क्या होना चाहिए, तो मोस्टली पीडीएफ डॉक्यूमेंट एडिटेबल नहीं होते हैं, तो आप वर्ड में भी इसको अपलोड कर सकते हैं।
क्योंकि मोस्टली वर्ड में ही हम लोग वर्ड फाइल में बनाकर उस फाइल को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ओपन है आपको सिर्फ ड्राफ्ट के लिए। ड्राफ्ट के लिए आप वर्ड फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। वर्ड फाइल में वंस इट विल अपलोड, तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं वो इजी वे में उसी फाइल के अंदर अपना एडिटिंग कर सकते हैं, और एडिटिंग करके वो डायरेक्टली अपने लेवल पर इफ ही इज द अप्रूविंग अथॉरिटी, यदि वो अप्रूविंग अथॉरिटी है तो वो उसको अप्रूव कर सकते हैं और अप्रूव करके डिस्पैच भी कर सकते हैं, right? Now, so there are the three ways to just write down to be then your draft. First is to be the simply write on the provided space by using keyboard and mouse. Second is to be then upload your ready-made draft in Word form, and third is to be then PDF form. PDF फॉर्म एडिटेबल होना चाहिए। वर्ड फॉर्म इज देयर, तो जो भी आपकी रिपोर्टिंग those who are your reporting officer, he'd first download the word file and then make correction in it and then again upload, right? Otherwise, if you just write on in this editor, this body of the editor, body text editor, so online editor, so then definitely he will directly make the changes here or make correction here. If it is an approved authority, he approve it and again dispatches, yeah, send it by self or our dispatch reciprocator centers units जो भी हमारे होते हैं DSU के थ्रू उसको सेंड कर देंगे। आई थिंक यू विल गॉट इट नाउ। आई एम जस्ट सेव, आई विल जस्ट सी द स्टेटस हैज बीन चेंज्ड नाउ। स्टेटस चेंज हुआ। द राइटेड पोर्शन डिटेल्स विल बी रिमेन्स द सेम। ड्राफ्ट डिटेल्स में तो कोई चेंज नहीं किया, बट हियर ये देखिएगा DFA हो गया। DFA में एक नंबर आ गया 10 और इट्स वर्जन इज 1। हाउ मेनी टाइम मेकिंग इन दिस वन, जितने भी मैं इसमें चेंजेस बनाऊंगा वो क्या करेगा, वो टाइम टू टाइम उसका वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसे करता रहेगा, राइट? नाउ सपोज आई विल जस्ट सेंड इट। मैंने अपना एक ड्राफ्ट बनाया and if at a stage, because it is with me, so at a time I can edit it, I can make changes whatever I just want, but once I send it, what I send to my reporting officer, so it will not be possible to make changes in, yeah, or add it into the draft. So first of all, make sure yourself yes, everything will be the right with your draft before sending to its your next level or in your hierarchy. So I just go for sent. I'm just show you okay how to send. Send folder is to be the same कि आपका sent में क्या क्या है देखिएगा। सेम थिंग चूज वन। यदि मैं तो डीजीएम से जा रहा हूँ तो नॉट अप्रूव क्लिक कर सकते हैं, डीजीएम न्यू दिल्ली में जा सकते हैं, राइट? तो हम लोग अपने सेक्शंस के थ्रू भी इसमें मूव कर सकते हैं। आप आरसीज में हैं तो यहाँ से आप फिर दोबारा अपनी आरसीज को लेंगे और दैट वे आप आगे मूव करेंगे। Now I'm just going to suppose I've limited one my record. नरेश नरेश कुमार लाकरा जी, आप क्या हैं इस वक्त बिजी पर? I think he is not be present today. Sir, he is present, sir. प्रेजेंट है तो आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट ऑन कर दो। म्यूट ऑन। चलिए कोई बात नहीं। कोमल जी, आई विल जस्ट सेंड टू ड्राफ्ट टू यू। आई विल जस्ट शो यू। सो दिस इज द सेम थिंग, जैसे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं एंड वी मेक टू बी देन एक्शंस क्या लेना है, इमीडिएट करना है, प्रायोरिटी ऑफ व्हाट एवर आपका प्रायोरिटी क्या इसका लेवल रखना है। इंटीमेट आप डाल सकते हैं। मीनवाइल इसमें इंटीमेट जैसे इन्हीं को जा रहा है, यदि मैं समवन एल्स को करता तो इंटीमेट मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को आ जाता। लीजिए सेंड किया मैंने, सक्सेसफुली सेंड। देखते हैं हम लोग ने क्या किया। लीजिएगा ना, जस्ट go for to be then I'll go to my reporting officer homepage. This is my reporting officer homepage. Here I just making click
It is the home page of the official to whom I will send my draft, my file along with to the draft. Yes, I will. It will show. Yes, she received within one file. Subject is this one and sent by to this one. And this is files with draft. That is a very, you just see this is a file with draft here. आप देख पा रहे हैं कि फाइल विद ड्राफ्ट है एंड दीज आर द येलो नोट्स. ये येलो नोट्स के साथ है. फाइल विद ड्राफ्ट है. ये येलो नोट्स ग्रीन नोट के साथ है. दिस इज आल्सो बी हैविंग टू बी द फाइल विद ड्राफ्ट. सो हाउ यू जस्ट गॉट इट. आप देखते ही कैसे पता लगाएंगे. तो यू जस्ट सिंबल इज ऑटोमेटिकली आर देयर. आप इन सिंबल्स का यूज करके आप पता कर पाएंगे ड्राफ्ट है या नहीं है. आप सपोज आई जस्ट ओपन दिस फाइल. No. Another option is yes. भाई फाइल पे हाउ दिस गॉट इट. मैंने इसको देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फाइल विद ड्राफ्ट. सो आई जस्ट गो फॉर व्यू ड्राफ्ट. भाई वो ड्राफ्ट क्या है. यस इट विल बी द ड्राफ्ट. ये आपका ड्राफ्ट है. डीएफए था एंड दिस डीएफए 10 नंबर का ड्राफ्ट था. स्टेटस अभी डीएफए है बिकॉज ही और शी नॉट कंफर्म्ड इट. जब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे इसको तो इसका स्टेटस डीएफए ही रहेगा. लास्ट इतना डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसके वर्जन्स भी आप चेंजेस किसी भी वर्जन को हटा सकते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ लिखा क्या था. देखिएगा ये ड्राफ्ट इनको ओपन हो गया एंड ये ड्राफ्ट आपके सामने ओपन है एंड बिकॉज he or she is my this he or she can be able to edit here. वो यहाँ कर सकते हैं. ये देखिएगा ड्राफ्ट है. डीएफए वर्जन 1 है. वो आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और वो आप में चेंज करके अप्रूव भी कर सकते हैं. अपडेट कर सकते हैं उसमें राइट. कुछ पोर्शन डिलीट कर सकते हैं. तो सो मैनी ऑप्शंस आर देयर. वो तीनों फैसिलिटीज हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के पास है. सो जैसे मैं इसको सपोज करिए मैं लिखता हूँ अप्रूव. मैंने कहा ठीक है ओके व्हाट एवर जस्ट राइट डाउन इट्स ओके. तो अप्रूव होगा. तो अप्रूव पे व्हाट इज दिस वन. आप अटैचमेंट लगाना चाहते हैं अटैचमेंट लगा सकते हैं यहाँ पर. और बाकी इसमें भी आप एडिट कर सकते हैं रिसिपेंट्स और ऐड रिसिपेंट्स. आपके रिसिपेंट्स कौन कौन होने चाहिए. ऑल थिंग्स आर देयर. आप यहाँ से जाकर आप नेम आप लिख सकते हैं. उनका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं. न्यू है तो न्यू. पब्लिक में जाना चाहते हैं इंट्रा ऑफिस में जाना चाहते हैं. अकॉर्डिंगली डेटाबेस ओपन होगा आपका और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने अपने आप यहाँ से चूज कर सकते हैं. आईएमडी का डेटाबेस है तो मैं किसी को भी जैसे आई जस्ट मेक सम अब आई जस्ट राइट दिस कीवर्ड. सो पर्सन्स आ रहे हैं ग्रीवनेंस सेल्स के हैं. तो सपोज मैं इनको क्लिक करता हूँ. सो ऐड कर लीजिए. ये ऐड हो गया. तो ड्राफ्ट आप किसी भी चीज में इंट्रा ऑफिस में भेज सकते हैं या इंटर ऑफिस में भेज सकते हैं. अदर एप्लीकेशंस पे तो पब्लिक में आप भेज सकते हैं. तो दीज आर द ऑप्शन. सेंडिंग ऑप्शंस है. आप इजी वे में इनको सेंड रिसिपेंट है. आप एक से ज्यादा लोगों को करना चाहते हैं आप यहाँ पे रिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं. बट इट रिक्वायर्ड नो एक्शन. तो मैंने कहा यस आई डिलीट दिस वन. ओके. Now, suppose he or she said, now my reporting officer is to be done at a time is the approval authority. Suppose there are the two cases, he may or may not be the approval authority. हो सकता है कि इनको अपने आगे लेवल पर ले जाकर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से अप्रूव कराना हो बिकॉज ही और दिस ऑफिशियल डजंट बी हैज टू बी एन अप्रूवल अथॉरिटी. याद रखिएगा हाई एग्री में आपका हर कोई ज़रूरी नहीं है. ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू बी एन अप्रूव्ड अथॉरिटी. वो डिसाइडेड है और वो अकॉर्डिंगली आपके डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंगली आपकी वर्क नेचर्स के अकॉर्डिंगली वो ई ऑफिस में ऑलरेडी आपको
दिया जाएगा कि आपके पास कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास डीएससी की अथॉरिटीज़ है, आपके पास अप्रूवल अथॉरिटी है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग योर डेजिग्नेशंस या आपकी जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो राइट्स हैं प्रोवाइडेड किए जाएंगे। Now suppose if this official has to be done approval authority, तो definitely it will be the send, वो send करेंगे, वो किसी अपने आगे पर्सन को सेंड करेंगे, मतलब अपने नेक्स्ट ऑफिसर्स को सेंड करेंगे। और एंड ही इंटीमेट, देखिएगा ऑटोमेटिकली इंटीमेट आएगा कि इंटीमेट टू दिस वन, मतलब क्रिएशन किससे हुआ था, मेरे लेवल पर हुआ था, आई विल क्रिएटेड इट, मेरे नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को दिया, उनके पास क्या, उन्होंने अपने नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को सेंड किया, तो इंटीमेशन मेरे पास भी आएगी। बिकॉज फाइल ट्रैक, मतलब आपका ड्राफ्ट पूरा ट्रैक है, एट ए टाइम आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन या वेयर इज योर ड्राफ्ट, आपका ड्राफ्ट किस ऑफिशियल्स के साथ पास है, एनी स्टेजेस पर आप बता सकते हैं, राइट। तो देयर इज वन ऑप्शन दिस वन, तो ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। बट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू विद प्रीवियस सेक्शंस के नेक्स्ट सेक्शंस, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शंस यही है कि आपका इफ ही और शी हैज टू बी अप्रूवल अथॉरिटी, तो जैसे ही शी गो फॉर सेंड, तो यहाँ पर एक बटन जनरेट हो जाता है अप्रूव्ड, याद रखिएगा अप्रूव्ड का एक बटन जनरेट हो जाता है। और क्योंकि दैट ऑफिशियल डजंट हैज टू बी एन अप्रूवल अथॉरिटी, राइट्स नहीं है, सो यहाँ पे वो अभी जनरेट नहीं होगा। जैसे ही एज यू जस्ट मेक क्लिक देयर, तो ड्राफ्ट बिकम अप्रूव्ड। इफ यू हैव टू द डीएससी साइन, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो ऑटोमेटिकली योर डीएससी डिजिटल सिग्नेचर विल बी द जनरेटेड, ड्राफ्ट ओके हो जाता है। और जो रिसिपेंट्स आपने डाले थे, अकॉर्डिंग दिस रिसिपेंट्स ड्राफ्ट, उनको अगेन जो नेक्स्ट पोर्शन होता है दैट आर कॉल्ड डिस्पैचिंग, वो डिस्पैचिंग इज द सेम एज द रिसिप्ट, रिसिप्ट केस में हो सकता है वो वहां चला जाता है और वो डिस्पैच हो जाता है। बिकॉज इन this official has to be then approval authority, so I am not be able to show this demo, but how it will work I will just give to them total ideas. Now if suppose this he want to send back, उसने DFA किया और DFA बनाया, उसमें चेंजेस किए आपको और कह दिया यस आपको सेंड बैक कर दिया, लीजिए इन्होंने ब्लैंक नोट करके एक दे दिया, सपोज शी राइट डाउन समथिंग, राइट, और ये सेंड कर दिया, सेंड किया, देन आई जस्ट गो टू माय इंटरफेस, मैं अपने उस पे इंटरफेस पे गया, आई विल जस्ट क्रिएट इनबॉक्स में देखिएगा one file is there. Now 59 notification is activate, and here I just 4 o'clock I will just got this file. Now open this one again. This is DFA. If he or she is means to be some changes are there, यदि वो चेंजेस करते या कुछ लिखते तो वो यहाँ अपेयर होता, और एट दैट टाइम होता क्या, आपके पास जैसे यहाँ अपेयर होता, यू जस्ट मेकिंग दिस चेंजेस, और इफ इट बिकॉज यू डोंट हैव टू देन सिग्नेचर अथॉरिटी, मेरे पास सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है, तो आई कांट बी इशू दिस वन, मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के पास है तो मैं उनके पास भेज देता हूँ। और यदि आप सिंपली बेसिकली दिस विल बी डिपेंड कि इशूइंग अथॉरिटी हु विल बी द अप्रूविंग अथॉरिटी, तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगा वो ही उसको सेंड कर पाएगा, क्योंकि अप्रूवल इज विल बी टेकन एट हिज और हर एंड, उसके एंड पर ही अप्रूव्ड होगा। वंस इट विल बी द अप्रूव्ड इट कैन बी डिस्पैच, उसको डिस्पैच किया जा सकता है। और डिस्पैच आप कर सकते हैं, डिस्पैच के लिए प्रोसेस क्या होता है, जनरल प्रोसेस है, या तो सेल्फ डिस्पैचिंग कर सकते हैं, आपको उनका ईमेल पता है, आपको उनका आप सीधा ईमेल पर आप दे सकते हैं। बट इफ यू जस्ट सेंड हार्ड कॉपी आप सेंड करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप अपना सेंट्रल जो रेसिप्रेटरी जो सिस्टम है, मतलब जो सेंट्रल जहाँ से डाक आपकी रिलीज होती है ऑफिस से, वहाँ से भी उसको आप फर्दर सेंड करना चाह सकते हैं। सो बिकॉज एट ए टाइम मेरे पास ये फैसिलिटी अवेल नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि हाउ यू कैन क्रिएट द ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन सेंड इट। So regarding this, any doubts or any questions, so you are most welcome. Any doubt at this stage,
Please ask. Any doubts? Mahendra Kumar Meena, sir. Are you Anji? there? No, sir, he doesn't have any doubt, but actually, it is requested to all DGM people to please do the hands-on. So I was just asking Mahendra Kumar Meena, sir, that if he is doing uh, it practically. No, I will also be sure, hands-on. No doubt, you have to require some time on the homes hands-on, and for the demo, I am directly go to the portal and making to the changes there. So hands-on, because I think all the DGM person can work on to their portals. आप अपने portals पे काम कर सकते हैं DGMs के वो hands-on कर सकते हैं. बट अदर्स के साथ लिमिटेशन है. आई थिंक उनके अभी अकाउंट्स अदर आरएमसीज में अकाउंट्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो इट विल टेक टू देन टाइम. क्या स्टेटस है कोमल जी अभी आपका इस स्टेज में? Yes, sir. MC श्रीनगर एंड RFC चेन्नई से भी शीट्स आई हैं, बट उसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सही से फिल नहीं हुआ है, तो उसको वापस ले जाए. तो ओके बेसिकली आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे और टुमारो मॉर्निंग आई थिंक डेटा हमारे पास आ जाना चाहिए. जी. तो बाय इन 2-3 डेज सर वो NIC भी फिर से पॉपुलेट कर देगा बैकएंड से. मतलब नेक्स्ट वीक ना? I यस think सर. next week each and every person will be available on its portals. So यस सर. then he or can make a hands-on, तो वो hands-on कर पाए. Okay, now any question, any doubt regarding to this one? So you are most welcome. Otherwise, I will just go to my second topic. The today topics हैं regarding to the notes. Noting की ही बात कर रहे हैं. अभी we are just talking about to the notes. Yesterday I will also be I will show you how to create a file. आप create file कैसे सकते हैं? How you just making notes, green notes, yellow notes are to the there. Then I just show you how to make to then referencing a flag is to the there. And now I'm told you about to be then yellow note. What is the yellow note? So again comes to my portal. This is my portal now at a time. So here you just see this option is there. Now you add node. One is green node. Green node आपको बताया था, and another is called yellow node. नीचे. This is yellow node. देखिएगा background is yellow. Its background is green. Yellow nodes. Basically, yellow note is to add a draft note होता है in a file for taking approval from reporting officer before finalizing the green note. होता क्या है? आप ड्राफ्टिंग करते हैं एक सेपरेट शीट पर पेज पर भी ड्राफ्टिंग करके आप ड्राफ्ट नोट करके उसे अप्रूवल करा देते हैं. कई बार फाइल पर भी ड्राफ्ट किया जाता है. इसे येलो नोट्स is this facility here correlated with the yellow notes. And always remember that once the yellow note is confirmed, it changes to the green note sheets. ये automatically green note sheet में convert होता है. Now again a question, what is this yellow green? ये क्या बोल रहे हैं? कभी yellow बोल रहे हैं, green बोल रहे हैं. तो it is a little bit confusing. ये थोड़ा सा confusing होगा. देखिए, I'm just taking it by example. मैं इसको एक दो example से लेके चलता हूँ. जैसे suppose करिएगा सिनेरियो 1 में मैं काम कर रहा हूँ कि जो पीएस हैं, आपने देखा पीए जो कई लोग पीए और पीएस होते हैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ अटैच होते हैं. तो जनरली क्या होता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने पीए और पीएस को डिक्टेट करते हैं. तो दे विल जस्ट राइट डाउन सिंपली कॉपीज पे कैन राइट डाउन करते हैं, राइट. सो एट दिस सिनेरियो पीए जो होंगे वो जो भी सर ने डिक्टेट किया है, उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उनको डिक्टेट किया है, वो उसको येलो नोट पे डालेंगे. बिकॉज ही डजेंट नो ना भाई इसमें सम करेक्शन विल बी देयर, मे बी होती हैं, हो सकता है कि एवरीथिंग पीए ने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो सर ने डिक्टेट की हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फाइल
तो डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है and our sir is want to make some changes are there, he added some point, delete some points. So just keeping this in mind, जो PA या CA जो PAs और PS होते हैं वो किस में लिखते हैं, you draft it in yellow page, या always remember that. वन इट्स सीनियर ऑफिसर्स, या तो क्या कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर, जनरली क्या होता है हमारे डे टू डे वर्क में क्या होता है, आपने कोई ड्राफ्ट नोट लिखा और उन्होंने चेंजेस के लिए कुछ लिखवाया आपको, आप गए, आपने जाके यू हैव टू मेक ए ड्राफ्ट, आपने एक वर्ड में निकाल कर सर ये मैंने बना लिया है, तो ही और शी मेक देन करेक्शन ऑन द कॉपी पे कर देते हैं, अगेन आप अपने सीट पे जाते हैं एंड देन उसको करेक्ट करते हैं एंड देन फाइल को फिर अगेन सेंड करते हैं एंड फाइनली इट विल बी अप्रूव्ड. तो सेम सिनेरियो स्टूडेंट हियर. एक सिनेरियो ये है जनरली जहाँ पर पीए और पीएस होते हैं, जहाँ पर आपका ड्राफ्ट नोटिंग हो रहा है, वो सारा का सारा फाइल ड्राफ्ट नोटिंग जो होता है दैट विल बी ऑन टू द योलो नोट. वो जितनी भी ड्राफ्टिंग लिखी जाएगी वो सारे के सारे आपके पास किस पे लिखे जाएंगे, दैट इज टू द योलो. दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जिसमें यूजर को कि ये नहीं पता है कि भाई जो कंटेंट है मैं उसे ग्रीन शीट में लिखूं या येलो में लिखूं, या उससे पहले उसको कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है अपने ऑफिसर्स की कि भाई वो क्या उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहता है, राइट. तो ऐसे केसेस के अंदर भी यूजर्स क्या होता है जो वो अपना जिसमें करेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा होती है, तो वो आप जो भी नोट्स लिखेंगे दैट इज टू द येलो नोट्स, राइट. तो सिनेरियो इज देयर. जैसे सपोज करिए मैंने लिखा दिस I just write on this. Okay. Same thing is there. So everything remains the same. Attachment all remains the same. येलो नोट्स था, मैंने उठाया एक येलो नोट सेंड किया, मैंने कहा ठीक है आई विल सेंड इट, मैंने सेंड किया एंड सेंड कर दिया रिपोर्टिंग सक्सेसफुली सेंड हुआ. अगेन आई विल शो यू कि भाई रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के एंड्स पर ये कैसा लगता है. फाइल देखिएगा, इनबॉक्स में फाइल आएगी, कोई फाइल आई अभी, यस शी रिसीव वन फाइल, ये देखिएगा. नाउ दिस फाइल हैज टू बी देन वन ड्राफ्ट इज देयर, मैंने बताया था ड्राफ्ट भी है और इस फाइल के अंदर एक येलो नोट भी है. नाउ यू जस्ट सी दिस फाइल हैज टू बी देन वन ड्राफ्ट एंड वन ग्रीन नोट, मतलब ओके फाइल पे जो लिखना था वो लिख दिया है आपने, बट हियर अनसर्टेनिटी जो लिखा वो ठीक है या नहीं है, कंफर्म नहीं है. Once I just make, I suppose I am the reporting at a time, she is to the reporting officer. First she confirmed it. If it is confirmed, this time delete it and you just go it only the draft, because draft she doesn't have to the approval power. That's why it will be attacked with this file always. Now click it, लीजिए version 1 yellow notes है मेरे पास. It will be yellow notes there. Okay, मैंने कहा ठीक है आपने जो नोट्स लिखा है ठीक है एंड इट विल बी अप्रूव्ड. सपोज आई विल जस्ट टेक चेंजेस. Suppose at this end she makes some changes and then confirmed it. She confirmed, save किया and then confirm. Once this official confirmed it, okay, now it becomes to be then. देखिएगा ये आपका ग्रीन नोट बन गया, इट बिकम ए ग्रीन नोट. लीजिए ग्रीन नोट बन गया, आप सेव कर सकते हैं. एडिटिंग का फीचर हट गया. फाइल नोटिंग आपने क्या किया, मैंने इसको ओके अप्रूव किया, सेम थिंग इज देयर. और या तो देयर आर द टू स्टेप्स. नाउ दो स्टेप्स वर्जन हो सकते हैं. आइदर मैं अपने अप्रूवल के लिए नेक्स्ट स्टेपिंग ऑफिसर्स, मेरे भी एक हायर अथॉरिटी है तो मैं उसको भी भेज सकता हूँ ये फाइल को. अदरवाइज मेरे एंड पे एंड होता है तो मैं इसे अप्रूव करके बैक भी कर सकता हूँ.
एज आई जस्ट मेक द अप्रूवल, ऑटोमेटिकली मेरे डिजिटल साइंस हो जाएंगे यदि इफ आई हैव डीएससी, और वो अप्रूव्ड बन जाएगा ड्राफ्ट, और नोटिंग जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। या कई बार आप अप्रूव नहीं कर सकते, येलो में भेजते तो नीचे के लेवल पे वो उसको ग्रीन नोट बनाते एंड देन इट विल कम्स टू अप टू यू। ओके, तो 2 केसेस आर देयर। अब मैं इसको सेंड बैक कर देता हूँ, जिस यूजर से आई है उसके पास जाए, आई जस्ट मेक सेंड। अगेन देखिएगा, नाउ टैग रिमूव होगा, आई जस्ट गो टू माय दिस विंडो, फाइल इनबॉक्स में देखिएगा, one file has been received. This is file at 414. I will just open this one. Yes, I will open it one, and this remark will be there because this official doesn't have DSC, so no DSC will be shown there. And this is one, and it will be the green note. If I just want to send annual board, मैं आप यहाँ से इसको close भी कर सकता हूँ फाइल को, ठीक है। इस फाइल को मैं पार्क भी कर सकता हूँ। कल टुडे यस्टरडे आई विल शो यू हाउ टू पार्क द फाइल, बताया था ना कि कई बार क्या होता है कि सपोज करिएगा इस पर जो फर्दर एक्शंस लेना है, दैट कंसर्न ऑफिसर इज ऑन लॉन्ग लीव, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, यू जस्ट टेक स्टूडेंट फाइल और उसे पार्क कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, कहीं रख देते हैं, इन योर सेल्फ में रख देते हैं या कहीं अलमारीज में रख देते हैं, और एक कहते हैं 2 दिन बाद आएंगे तो आप इसे ले सकते हैं, वापस भी वहीं से ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं शो कर देता हूँ, पार्क कीजिए, ड्यू डेट, सपोज माय कंसर्न ऑफिसर विल बी कम बैक ऑफिस एट ऑन 14th ऑन मंडे, राइट। सो पार्क रिमार्क मतलब कंसर्न ऑफिसर ऑन लीव, आप लिख सकते हैं कब से कब तक लीव है यदि आपको पता है तो, या कोई भी अदर रीजन है, ओके करके पार्क कर दिया अपने फाइल को। देखिएगा फाइल रिमूव हो गया एंड इट विल गो टू पार्किंग। पार्किंग पे मैंने टैग लगाया 14th का, तो एज द 14th को वो ऑटोमेटिकली वेयर इट फाइल गोज, पहले तो देखते हैं, फाइल इज हियर, राइट। वो ऑटोमेटिकली जैसे 14th होगा वो एक रिमाइंडर जनरेट करेगा, नोटिफिकेशंस जनरेट्स हो जाएंगे। इफ इट रिलेटेड विद नोटिफिकेशंस में प्रेफरेंस में यदि आपने दिया हुआ है तो आपकी एसएमएस आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यस ये हो सकता है, ईमेल आपका जनरेट हो सकता है, तो दीज आर ऑल रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर आएंगे। अदरवाइज आप डेट को चेंजेस करना चाहते हैं तो एट दैट मोमेंट यू कैन आल्सो ड्यू डेट्स को आप एडिट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नो वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, ही और शी विल बी ऑन लिव अप टू 14, वो तो कल ही आने वाले हैं, मतलब टुमारो ही और शी विल बी कम, तो देन यू जस्ट अनपार्क इट, आप अनपार्क भी करें, अनपार्क किया तो अगेन इट विल आस्क, आपके पास पूछ रहा है रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन, भाई रीजन क्या था, व्हाई यू हैव टू पार्क हियर, सो यू हियर अगेन यू हैव टू प्रोवाइड इज द रीजन व्हाई यू अनपार्क, तो द आई जस्ट राइट डाउन, सपोज बाय मिस्टेक भी कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं बाय मिस्टेक हो गया, ओके कर दिया, लीजिए अनपार्क हो गया, वेयर आई एम जस्ट रिसीव इट माय इनबॉक्स, देखिएगा अगेन दिस फाइल, दिस इज कॉल्ड पार्क, आपने फाइल को पार्क कर दिया। ओके, आई थिंक आपको यू आर गेटिंग समथिंग, आपको कुछ आप लोगों को कोई डाउट है इस स्टेज पर तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? ओके, now again I am just going to this one, लीजिएगा, next is to our suppose I just this file, you know there will usually in our office there is a one concept of part, आपने सुना होगा, देखा होगा कि at a time suppose you have to carry it out the two or more works, the two or more
works on the same file, so then how it will be possible? Usually you just there you just create the लूज फाइल कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं. सेम फाइल नंबर को हम डिक्टेट करते हैं और साथ ही के साथ उस पर लिख देते हैं लूज. और करते कैसे हैं? सपोज करिएगा आई एम ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट, मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे फाइनेंस से भी डील करना है, मुझे सपोज करिए थर्ड पार्टी से भी डील करना है, मुझे सीपीडब्ल्यू से भी डील करना है सेम फाइल पे, एंड इट इज अ टाइम फ्रेम, और ये टाइम फ्रेम है. तो एट ए टाइम क्या होगा, मैं सारी चीजें तो एक फाइल पे, इज इट पॉसिबल? यदि वन फाइल पर हम वेट करेंगे तो इट विल टेक देन लॉट ऑफ टाइम. तो एक पर्सन पे जाएगी, पर्सन ए पर, पर्सन ए से वापस आएगी एक्शन के बाद, इट मे बी कंप्लीट एक्शन हो जाएगा, देन वी जस्ट गो टू द पर्सन टू बी, या बी पे जाएंगे. तो इसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली रन द वॉल, हम एक लूज फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. तो नाउ सेम थिंग इज आल्सो हियर. यहाँ पर भी आपके पास देयर विल बी द वन कॉन्सेप्ट है आपके पास, एंड दैट इज टू बी देन योर पार्ट. आप पार्ट कर सकते हैं. जैसे सपोज करिए मैं इसी फाइल का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस फाइल. आई एम जस्ट गो फॉर पार्ट. दिस इज create part. Now see here, type and file. No, it doesn't be allow me to add it in my file number. Now even in my topic descriptions, because these are the mandatory field, once it will be the field I can't be changes, because at a time I just going for with an part the file. It means that its file number will be the remains the same, its description will be the remains the same. Then I just say please check it. Now and again a new file will be open, but you just see electronic in file, okay, 70 is that there, okay, but here you just see file number is same, but instead of lose it will be write down part 1. Subject is the same, so user can't be make the changes in file number and your topic, your subjects. So automatically it is the file, that is a loose file, which is in simple. And then it's the same way you can make the notes there, you can add the receipt there, and consent to then corresponding receipt you make to the notes. By notes either by use the yellow note or to the green note, you can also make to the draft here or send it with all the procedure you can apply here. आप जितने भी procedures आप apply करते थे फाइल पर आप कर सकते थे. Now here I will show you what is the main thing is part 1. Again you just part it, आप उसको पार्ट करेंगे तो फिर ये अगेन आपके पास एक और फाइल ओपन हो जाएगा, पार्ट 2. इट विल टेकिंग टू द पार्ट 2 ले लेगा उसमें. सो आई थिंक आपको ये यू विल गेटिंग इट, आपको ये चीजें समझ में आ रही है. क्रिएट पार्ट इज आल्सो देयर, पार्क इज आल्सो देयर. वॉल्यूम इज वन थिंग इज टू बी देन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है आप समझते हैं? वॉल्यूम क्या है? क्रिएट वॉल्यूम. Anyone know about this one? कोई इसके बारे में बताना चाहेगा? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है डे टू डे फाइल्स में? प्लीज पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस. वॉल्यूम क्या होगा जनरली कॉन्सेप्ट में? डे टू डे ऑफिशियल प्रोसीजर में हम करते क्या है आप देखते हैं. लूज फाइल, आप फाइल्स लेते हैं, फाइल्स लेने के बाद आपका फाइल एक स्टेज पर बल्कि हो जाता है, इट बिकम बल्कि. देन आप क्या करते हैं? उसका वॉल्यूम 1 करके वॉल्यूम 1 ओपन कर देते हैं, आप न्यू फाइल उसको बनाते हैं, एंड जस्ट कीप दिस वॉल्यूम 1 इनटू बी देन योर सम सेल्फ. आप कहीं सेल्फ में या आपका जो भी स्टोरेज पॉइंट है वहां पर उसको आप इसको पुट अप कर देते हैं, रख देते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट ऑन टू द ई फाइल, बट हियर बी प्रिकॉशियस. यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होगा
that is valid only for then your physical files. ये जो ऑप्शन है ये वैलिड है सिर्फ फिजिकल फाइल्स के लिए। फिजिकल फाइल समझ रहे ना, एक फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो तरह के डिस्टिंक्शंस आई विल टोल्ड यू कि फिजिकल कैसे करते हैं और आप उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। वंस अगेन आई विल टोल्ड यू। सपोज कीजिएगा, सपोज कि देयर आर द टू वेज, जैसे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स आप जनरली रन है, आपने नंबर जनरेट कर दिया बट यू डजंट वांट एनीबॉडी इज सीन व्हाटएवर जस्ट कंटेंट ऑफ दिस फाइल, कोई भी इसको देखे ना इस कंटेंट ऑफ दिस फाइल, आप नहीं चाहते द कंटेंट ऑफ दिस फाइल विल बी ऑन आवर ई प्लेटफॉर्म या आवर ई ऑफिस। तो देयर इज आल्सो बी वन ऑफ द प्रोविजन। ऐसे केसेस में यू हैव टू क्रिएट इट विद एन फिजिकल फाइल, आपको फिजिकल फाइल के नाम से ओपन करना पड़ेगा। सेकेंडरी वन, सपोज यू वांट ओके you doesn't care कि someone is see the content, so okay, तो then you just create it with an electronic version में। तो दो वर्जन्स आपके पास है, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो आप समझ रहे हैं। बट क्रिएट वॉल्यूम इज, देखिए इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स आप जो भी बना रहे हैं उनका कंटेंट, रिसीव, मूवमेंट, एवरीथिंग विल बी हियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको कुछ नहीं करना। आपको कोई भी एक फील्ड याद, कंप्यूटर नंबर याद है, यू जस्ट गो फॉर विद एन एडवांस सर्च। इनकी सर्च नो डाउट, ये जो सर्च है इस सॉफ्टवेयर का, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्च। मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर देखे बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्च उसका, और आप बहुत बेहतरीन सर्च है इसका। इसलिए मैंने फर्स्ट डे मंडे जब हमने इसको स्टार्ट किया था, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट विद एन रिसिप्ट, हाउ वी जनरेट द रिसिप्ट एंड एड इट विद इन मेटा डेटा इनटू विद इन डिफरेंट डिटेल्स मैंने बताई थी, डिटेल्स में डाले थे, एड्रेस में डालते थे। तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि यस आप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम मेटा डाटा फील्ड को कवर कीजिएगा, और ये ऑप्शनल होगा क्योंकि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सेंट्रल मैनुअल्स, जो हमारे प्रोसीजर हैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट मैनुअल जो ऑफिशियल प्रोसीजर है उस पर बना हुआ है। सो बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जो कि हम डे टू डे अपनी प्रोसेसिंग फाइल प्रोसेसर में यूज़ नहीं करते हैं, बट सब मैंडेटरी, दैट्स वाई उन्होंने सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंडेटरी बना दिया है। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड को आप मेटा डाटा फील्ड कर सकें, जिससे कि आपका रिट्रीवल इजी हो जाए। तो फिजिकल फाइल में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज फिजिकल फाइल में क्या होगा, यू कैन सी ऑन द मूवमेंट, आपको पता है ये फाइल थी, ये नंबर थी, वो जनरेट हुई और वो इस वक्त पर्सन ए के पास है, नाउ इट विल गो टू पर्सन बी, डेट, टाइम, स्टैंपिंग, एवरीथिंग विल बी देयर, इट इज अ फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। नाउ फिजिकल फाइल के लिए ये जो है सिर्फ फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के से तरीके से वर्क करेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो ऑटोमेटिकली इटसेल्फ ए फाइल, वो सब कुछ है, वो ट्रैकिंग भी कर रहा है, उसका मूवमेंट भी उसकी सारी ट्रैकिंग कर रहा है, उसके कंटेंट को भी आप देख सकते हैं, उसको आप प्रॉपर एक फाइल की तरह चला सकते हैं। So this is about all these things. One thing is there also, I will show you. There is one option is move to. देखिएगा आप डेली मोस्ट ऑफ क्या ऑल ऑफ यू यूजेस द योर ईमेल, आप ईमेल अपना यूज करते हैं, एंड ईमेल यूज ना यू कैन मेक टू डिफरेंट फोल्डर्स आप बना लेते हैं। आप अपने जैसे सपोज करिए आपने अपने गूगल जो भी आपका ईमेल है उसमें एक फोल्डर बना लिया आपने कि भाई फाइनेंस से रिलेटेड मैटर मैं फाइनेंस में डालूंगा, इफ़ यू आर म्यूचुअल फंड पे तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो है मैं इसमें डालूंगा। तो फोल्डर्स आप क्रिएट करते हैं, उन फोल्डर्स को भी हियर बाय यूज ऑफ दिस वन यू कैन क्रिएट द फोल्डर। जैसे आई जस्ट क्रिएट द फोल्डर, मैंने क्रिएट किया। अब फोल्डर नेम मैंने सपोज किया कि बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड द डाक, मेरे एंड पे ही डाक आती है, तो मोस्टली मैंने देखा कि इट विल कम फ्रॉम 5 to 7 मिनिस्ट्री से मेरे पास फाइल आती है, उससे ज़्यादा फाइल आती नहीं। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट फॉर मैनेज द डाक आई वाज जस्ट मेकिंग टू द 5 or 6 फोल्डर। मैं फोल्डर और हर एक का डाक उसमें डालते जाते, जिससे कि क्या होता है फोल्डर ऑप्शन से क्या होगा, रिट्रीवल, एवरी फोल्डर ऑप्शन से मैनेजमेंट हो रहा है,
रिट्रीवल टाइम रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मशीन्स में, सॉफ्टवेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढने में लग रहा है 1 घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका जितना रिट्रीवल टाइम कम से कम होगा, उतना ही आपका सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही वेल एफिशिएंट माना जाएगा। जैसे सपोज मैंने इसको डाला IMD करके एक फोल्डर डाल दिया सपोज, और कहाँ क्रिएट करना, फाइल इनबॉक्स में जाके क्रिएट होगा, सेव कर दीजिए। देखिए फाइल भी गई, देखिएगा इनबॉक्स में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा IMD, और इसमें एक फाइल है, ये सारी की सारी फाइल्स क्या आ गई मेरी अब IMD, दिस आर ऑल रिलेटेड टू IMD। सपोज अगेन आई एम जस्ट मेकिंग ए क्रिएटर, मैं करता हूँ मूव टू एक नया क्रिएट मैनेज फोल्डर। अब देखिए मैनेज फोल्डर में अभी मेरे पास IMD है एंड टोटल 4 फाइल्स आर देयर। आप समझ रहे हैं, सेम थिंग इफ आई एम जस्ट MOES, आई जस्ट मेक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो, मिनिस्ट्री ऑफ सो एंड सो, तो हाउ मेनी फोल्डर, आप नंबर ऑफ फोल्डर्स कैन यू कैन जनरेट, आप जनरेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट्स रिसिप्ट्स इन फोल्डर्स, आप उसको कर सकते हैं। तो इट इज बेटर मैनेजमेंट इज देयर। इफ जस्ट वांट टू रिमूव दिस वन, you just go for to the delete action. Okay, now it will be the delete, some error is there. Okay, इसमें डिलीट नहीं होगा क्योंकि फोल्डर को ओपन करना होगा पहले, तब ये डिलीट्स करेगा, राइट। तो उसको ओपन करेंगे, मतलब ब्लैंक करेंगे, और तब उसको हम डिलीट करेंगे, क्योंकि फाइल और फोल्डर्स के साथ वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। आइए जस्ट कीपिंग इन टाइम, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और चीजें भी देखते हैं इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल के बारे में हम लोग कर रहे थे, क्रिएटेड भी हमने किया, पार्ट भी हमने किया, वॉल्यूम्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। नाउ देयर इज ए सेंड हो गया दिस वन, नाउ आई एम जस्ट गोइंग ऑन क्लोजिंग ऑफ द फाइल, लास्ट इज टू बी डन क्लोजिंग ऑफ द फाइल, वी हैव टू वर्क ऑन द फाइल। सब कुछ हमने फाइल पे कर लिया, फाइल के मूवमेंट्स भी देख रहे हैं, उसके फाइल पे रिकॉर्ड भी स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, एंड देन लास्ट स्टेप होता है कि हाउ यू जस्ट क्लोज द फाइल। क्लोज कैसे करेंगे? Now, sir, closing process is a very vital and very important process, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आके आपका, चाहे आप हायरार्की में हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आएगा और क्लोज कर देगा। मतलब आपको उसके लिए राइट। तो क्लोजिंग के लिए डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास राइटिंग, आपके पास राइट्स क्या होंगे और आप किस लेवल पर इसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, दिस रोल इज डिफाइंड, ये रोल डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैंने ही ओरिजिनेट किया तो मैं क्लोजिंग कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि फाइल जब क्लोज करना हो, आई एम ट्रांसफर फ्रॉम दिस वन टू अनदर डिपार्टमेंट, या हो सकता है आई एम बिन ऑन लॉन्ग लीव, मैं लॉन्ग लीव पे हूँ, ठीक है, ऑन लॉन्ग लीव हूँ या स्टडी लीव पर, या किसी भी लंबी लीव पे हूँ 1 ईयर तक, तो आप क्या कर पाएंगे ऐसे केसेस में? आप क्लोजिंग प्रोसेस को होल्ड तो नहीं कर सकते, किसी भी प्रोसेस को होल्ड नहीं कर सकते। सो देयर इज ए हायरार्की राइट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को क्लोजिंग कर देगा। हायरार्की राइट्स होंगे आपके पास, आपके सेक्शंस राइट होंगे, आपके डिविजन्स राइट्स होंगे, तो ऑल आर अलॉटेड, वो सब कुछ अलॉटेड होगा आपके पास, जो कि पॉलिसी, जिस अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसीज NIC की सर बैक टीम को दिया, उसके अकॉर्डिंग वो सारे राइट्स आपके पास होंगे। Here just show you how to make to closing। तो 2 रोल्स हो सकते हैं क्लोजिंग में अकॉर्डिंग, 2 सिनेरियो हो सकते हैं। वन इज टू बी देन यू आर नॉट ए अप्रूवल अथॉरिटी, आप अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है, तो देन आप क्या करेंगे, आप क्लोज के लिए, अप्रूवल के लिए सेंड करेंगे अपने रिपोर्टिंग को। इफ इट इज अप्रूव, देन आप जाके उसको क्लोज कर पाएंगे, दिस इज द वन। And whenever you just go for, I just make this file, suppose, close, remark, suppose मैंने लिखा work completed, okay, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया सर, नाउ जो हमारा वर्क था कंप्लीट, नाउ वी हैव टू क्लोज इट, ओके, सक्सेसफुल क्लोज।
नाउ एट ए टाइम बिकॉज इट इज अ डेमो पर्पसेस, मेरा ही सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख पा रहे हैं। देखेंगे कहाँ? क्लोज में देखेंगे और विद मी में देखेंगे। देखिए दे आर द टू वन। If I am not the final authority, so I have to submit this file for sorry, I am submit this file for approval. मतलब अप्रूव फर्दर अप्रूवल के लिए देना पड़ता है। मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ सर, इज इट ओके? तो वो अप्रूव करते तो देन आई एम एबल, तो मैं उसे कर पाता, या अप्रूवल अथॉरिटी आती, या वो अप्रूव करते तो अप्रूवल अथॉरिटी और क्लोजिंग अथॉरिटी दोनों सेम आ जाती है उस वक्त। वो अप्रूव करेंगे तो क्लोजिंग भी करवा देते हैं, राइट? राइट, बट समटाइम क्या होता है कि मैं अपने एंड पे ही फाइल जनरेट की और मुझे ही अथॉरिटी आ गई, यस क्लोज इट, मैंने क्लोज की एंड दिस फाइल विद मी, मैंने एक फाइल को क्लोज किया, यस दिस फाइल इज देयर। बट आफ्टर सम टाइम मुझे याद आया कि भाई अभी सम वर्क हैज टू बी डू ऑन दिस, वर्क कैरिड आउट ऑन दिस फाइल, सो मुझे तो इसको दोबारा रीओपन करना होगा। होता नहीं है, आप फाइल को क्लोज करके शेल्फ में या अलमारी में रख देते हैं, तो फिर क्या होता है, जब भी आपको जरूरत होती है उसकी, तो यू जस्ट ड्रॉ इट, आप वहां से वापस लाते हैं एंड देन वर्क ऑन इट। द सेम फीचर्स इज आल्सो हियर, रीओपन। बट हियर अगेन यू हैव टू मेक द रिमार्क। So everything is recorded कि concerned officers ने sent to be then close या follow the close process. Why? Here I'm just make a command there. Yes, work is completed. Now the concerned officer want to reopen it. Why? I just make a command. मैंने लिखा I by mistake sir. Suppose I just by mistake. मैंने मिस्टेक से इसको कर दिया है, बाय मिस्टेक इट विल बी देयर, क्लोजिंग ऑप्शन में चला गया, ओके किया, फाइल अगेन मूव करेगी और फाइल विल बी कम्स टू बी गोस टू माय ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज द क्रिएटेड फोल्डर से मैंने लिया था फाइल दे। सो दिस इज द क्लोजिंग प्रोसेस। नाउ बल्क क्लोजिंग इज रिक्वायर्ड, बल्क क्लोजिंग भी होती है। आप जब आप इफ यू हैव टू देन सो मेनी फाइल्स आर देयर, मतलब आपके पास 1000, मतलब जब आप यू नो व्हेन वी जस्ट गोइंग फॉर रीडिंग आउट पे जा रहे हैं किसी एक बल्क क्लोजिंग फाइल से, आपको लगता है क्लोज फाइल्स करना चाहते हैं, सो मेनी फाइल्स आर रनिंग, तो आप क्लोज कर सकते हैं। तो और क्लोजिंग के लिए बल्क क्लोजिंग में आप सिलेक्शंस इज देयर और आप इजी वे में सिलेक्शंस को कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट आवर फाइल। आपने देखा कि हाउ वी जस्ट क्रिएट ए फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके फाइल पर राइट करते हैं, कैसे रिसीप्ट अटैच करते हैं, कैसे फाइल को पार्क करते हैं, कैसे फाइल में वॉल्यूम्स बनाते हैं एंड कैसे फाइल्स में फाइल्स भी अटैच करते हैं फॉर रेफरेंस। अटैचमेंट इज देयर, लिंकिंग इज देयर, आई थिंक आई शो यू लिंक प्रोसेस, मैंने आपको बताया। चलिए मूव इट होगा, लिंक्स देखिएगा इस फाइल्स में। सो दैट इज ऑल अबाउट टू देन योर फाइल्स। लिंक कर सकते हैं, लिंक इज नथिंग एल्स, आप सिर्फ सिंपली लिंक पे जाइए, फाइल्स लीजिए, फाइल खोल लिए एंड देन लिंक फाइल्स, आप लिंक कर सकते हैं फाइल्स को। कई बार ऐसा होता है ना, एक फाइल से डिसीजन मेकिंग या मैनुअल्स आर टू देन वन फाइल एंड जो कंसर्न जो प्रेजेंट मैटर है दैट इज द अनदर फाइल, तो वी हैव टू मेक लिंक, आपको फाइल्स को लिंक्स करना होता है, राइट? तो हाउ you can link, simply link, suppose I'm just no record is there, I just making link, files will be there, which file we just want to link, this one, आपने कोई भी एक option, I will just taking this one, okay, and the one thing is there very important, here you just go for year wise search, नहीं 2020 because start here, suppose 5 year back का references आपको चाहिए, फाइल चाहिए, तो नो नीड ऑफ गोइंग फॉर टू देन स्टोर, आपको स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली जाइएगा, फाइल्स को लीजिएगा, लिंक कीजिएगा, बट हियर यू जस्ट राइट डाउन टू देन रिमार्क, उस पर लिखिएगा क्यों इस फाइल को आप यहां से स्टोर रूम से ले जा रहे हैं, बिकॉज वंस आप किसी भी एक डोमेन से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर से स्पेस चेंज कर रहे हैं, सो यू हैव टू प्रोवाइडेड द रिमार्क टू द मशीन, वो बिल्कुल काउंटर है, रिकॉर्डेड करना होगा,
इस पे रिमार्क्स लिखा, मैनुअल्स आर पुट इन देयर, या मैंने लिखा फॉर कंसर्न, सपोज आई फॉर डेमो पर्पज, और एक मैंने इसको लिंक कर दिया। लीजिएगा फाइल इज लिंक, इसके साथ इसके एक रेफरेंस फाइल, क्योंकि किसी को भी सपोज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वांट टू प्रोवाइड ये डिस्क्रिप्शन, वेयर विद डिस्क्रिप्शन, तो ही विल जस्ट ओपन और यहां से वो ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लिंक ऑफ द फाइल। आई जस्ट डीलिंकिंग, सिंपली डीलिंक कीजिएगा, रीजन दीजिए बाय टेक and then okay, yes, file again goes to its original position and then go for, I think लीजिएगा सर, दिस इज अबाउट लिंक ऑफ फाइल। अटैच, आप अटैच भी कर सकते हैं, वो तो हमने आपने अटैच फाइल भी कर सकते हैं, अटैच रिसीव भी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, बट क्लोज प्रोसेस हो गया। मोर में क्रिएट पार्ट, आई विल जस्ट शो मर्ज इज ऑप्शन इज देयर, यस आई विल जस्ट टोल्ड यू। Merge means I will show you that. So you have to making to be then. Suppose you are making to be then 3, 5, 6, 7. आपने लूज फाइल बना लिया आपने, जैसे हमने बोला लूज फाइल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, देन यू मर्ज दिस वन। आप उन फाइल्स को क्या करते हैं, मर्ज भी तो करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मर्ज फाइल।